کیا یہ بات تھوڑی حیران کن نہیں کہ ایک ننھی سی مکھی، مطلب جو شاید آنکھ کو ٹھیک سے نظر بھی نہ آئے، وہ کسی بھی کسان کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل پہنچا سکتی ہے۔ اور مطلب پورے یورپ میں پاکستان کے آموں کی جو کنسائنمنٹ ہے اسے مستعد کروا سکتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم روایتی کھیتی باڑی سے نکل کر جدید سائنس میں قدم رکھ رہے ہیں، اور یہ بہت ضروری قدم ہے۔ بالکل۔ ہم آج گہرائی میں جا کر تجزیہ کر رہے ہیں پنجاب مینگو مینجمنٹ گائیڈ 2026 کا، اور یہ دستاویز JQ گلوبل ایگریکلچر کی جانب سے پیش کی گئی ہے۔ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے مینگو آرچرڈ اسٹریٹجی 2026۔ جی، تو سب سے پہلے میں پنجاب ایگریکلچر سیریز کے اس باغات کے جدید انتظام والے حصے میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ زبردست۔ دیکھیں، اس میں جو ہمارا ہدف ہے نا، وہ سال 2026 ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم برآمدی معیار اور پیداوار میں اضافہ کریں، یعنی جسے ہم ییلڈ آپٹیمائزیشن کہتے ہیں۔ اچھا، پیداوار میں اضافہ۔ رائٹ، بالکل۔ اور یہ جو پوری حکمت عملی ہے، یہ ہمارے سیمینار کے ماہر اور سینئر سوئل سائنٹسٹ جناب محمد جاوید قمر صاحب کی ماہرانہ رہنمائی میں مرتب کی گئی ہے۔ ان کا ویژن بہت واضح ہے۔ یعنی یہ کوئی عام کتابچہ نہیں ہے؟ جی نہیں، اس کا اصل عزم تجارتی سطح پر آم کے کاشتکاروں کو عالمی منڈیوں کے لیے بااختیار بنانا ہے، تاکہ وہ صرف مقامی سطح پر نہ رہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں۔ صحیح۔ مطلب اگر میں ایک تشبیہ دوں تو یہ حکمت عملی ایک عام کسان کو بین الاقوامی تاجر بنانے کا ایک پورا بلو پرنٹ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے امپورٹنس آف مینگو کنگ آف فروٹس۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آم پاکستان کی زرعی برآمدی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جی، یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، خاص طور پر اگر ہم جنوبی پنجاب کے اضلاع کی بات کریں، جیسے ملتان اور رحیم یار خان، تو یہ پیداوار کے بنیادی مراکز ہے۔ بالکل، ملتان کا آم تو ویسے بھی بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل موسمیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، ان کا براہ راست اثر پھولوں پر یعنی بور پر اور ہماری پیداوار پر ہو رہا ہے۔ مطلب کلائمیٹ چینج واقعی ایک بڑا خطرہ ہے۔ بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے ہمیں جدید حکمت عملیوں کی ضرورت ہے، جو نہ صرف کاشتکاروں کی خوشحالی کی ضامن ہے بلکہ ملک کی پیداوار کو بھی محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ اچھا، تو کیا ہم آم کو پاکستان کی معیشت کا گولڈ ریزرو کہہ سکتے ہیں؟ اسے گولڈ ریزرو کہنا بالکل درست ہوگا، لیکن ہمیں اسے کلائمیٹ چینج سے بچانا ہوگا۔ صحیح، وقت کی پابندی بھی اس میں بہت اہم ہے۔ تو اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے سیزنل کیلنڈر کروشل ایکٹیویٹیز۔ یہ کیلنڈر بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیں، مارچ یعنی بہار کے موسم میں جب بور کا مرفع ہوتا ہے تو کیڑوں سے بچاؤ اور آبپاشی کی انتہائی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مارچ میں، اور پھر اپریل میں؟ اپریل جو ابتدائی گرمیاں ہیں، یہ پھل بننے کا اہم ترین مرحلہ ہے۔ اس وقت پانی کا بہت سخت انتظام درکار ہوتا ہے، ذرا سی کوتاہی نقصان کر سکتی ہے۔ اور پھر مئی کا مہینہ آ جاتا ہے۔ جی، مئی یعنی درمیانی گرمیوں میں پھل کی نشو نما تیزی سے ہوتی ہے، تو ہمارا سارا فوکس پودے کی غذائی ضروریات پر ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں جون اور جولائی میں کٹائی کا موسم آتا ہے۔ یعنی تب پھل تیار ہو جاتا ہے؟ بالکل، اس وقت محفوظ ترسیل اور برآمد کی تیاری کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آم کی کاشت ایک ایسا عمل ہے جو بالکل گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ چلتا ہے۔ مطلب کسی ایک مہینے کی غفلت پورے سال کی محنت ضائع کر سکتی ہے۔ آپ نے بالکل درست سمجھا، یہ ٹائم سینسیٹیو کام ہے۔ اچھا، اب بیماریوں کی بات کرتے ہیں۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے مینگو میلفارمیشن، گوڈی کا بیمار ہونا۔ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ دیکھیں، ایک صحت مند پھول اور میلفارمیشن والے پھول میں بہت بڑا سائنٹیفک فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ جو صحت مند پھول ہوتا ہے نا، اس سے پھل بنتا ہے، لیکن بیماری کی صورت میں جو پھول ہے وہ بانجھ ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے پھل نہیں بنتا اور وہ گنجان گچھوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے ہی مقامی زبان میں گڈی کا بیمار ہونا کہتے ہیں۔ ارے، تو اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ گچھے دار اور بے ثمر ہوتے ہیں؟ جی بالکل، یہ بیماری کی سب سے واضح علامت ہے،
और इसका इलाज ये है कि मुतासरा बोर को 8 से 10 इंच तक सब्ज डंडी समेत काट देना चाहिए। 8 से 10 इंच तक? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बज़ाहिर लगता है, लेकिन मैं वजह बताती हूँ। उसके बाद कटी हुई शाखों को फौरन बाग से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ताकि फफूंदी यानी फंगस का फैलाव रोका जा सके। और फिर उनका क्या किया जाए? उन मुतासरा हिस्सों को कड़ी धूप में डालकर सुखाया जाता है, जिसे सोलराइजेशन कहते हैं, ताकि जरासीम मुकम्मल खत्म हो जाएं। मुझे इस 8 से 10 इंच वाले उसूल पर हैरत हो रही है। मतलब अगर खराबी आगे है तो इतनी पीछे से शाख क्यों काटनी? वो इसलिए क्योंकि बीमारी के जो जरासीम है ना, वो बज़ाहिर सेहतमंद नजर आने वाली शाख के अंदर तक यानी उसकी रगों में फैले होते हैं। अगर हम सिर्फ गुच्छा काटेंगे तो फंगस अंदर ही रहेगी। ओहो, ये तो बड़ी गहरी बात है। तो इसका कीमियाई इलाज भी होगा? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है केमिकल कंट्रोल फॉर मैलफॉर्मेशन। जी, केमिकल कंट्रोल बहुत जरूरी है। मुतासरा शाखों की कटाई के बाद हम मखसूस और वसी उल असर फफूंदी कश अद्वियात यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड्स का स्प्रे करते हैं। सही, सिर्फ फंजीसाइड्स या कुछ और भी? इसके साथ पौधे की मुतवाज़िन नशोनुमा के लिए टारगेटेड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर्स? बिल्कुल, खासतौर पर नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो मजीद खराबियों को कम करता है। लेकिन सबसे अहम बात वक्त की है। वक्त की अहमियत? जी, स्प्रे सिर्फ और सिर्फ तजवीज़ करदा मौसमी औकात यानी मखसूस ग्रोथ विंडोज में ही करना जरूरी है। आगे पीछे करने से फायदा नहीं होता। मतलब दवाइयों की टाइमिंग तो दवा की खुराक जितनी ही अहम हो गई। 100%। केमिकल कंट्रोल और पौधे की अंदरूनी नशोनुमा का जो तवाजुन है, वो दुरुस्त वक्त पर ही हासिल किया जा सकता है। ये तो हो गई फंगस। अब कीड़ों पर आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मैनेजिंग मैंगो हॉपर। तेला तेला आम के बाग का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके लिए हमें प्री फ्लावरिंग एक्शन लेना पड़ता है, यानी बोर आने से पहले ही दरख्तों के तनों और मोटी अंदरूनी शाखों पर पहला स्प्रे करना होता है। अच्छा, बोर आने से पहले ही तने पर स्प्रे? जी हाँ, और इसके लिए जो बेहतरीन केमिकल है वो डाइनोटिफ्योरैन है, जिसकी मिकदार 50 ग्राम फी 100 लीटर पानी होती है। सही। इसका एक मुतबादिल भी है। हम क्लोथिनीडॉन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 150 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी के हिसाब से। ये भी इंतहाई मुअस्सर है। और जब फूल खिल जाएं, तब क्या करना है? फूल खिलने के बाद हम बैरूनी घेरे की कड़ी निगरानी करते हैं। बैरूनी हिस्सों पर तेले के हमले को सख्ती से मॉनिटर और कंट्रोल करना पड़ता है। मैं तो तेले को एक खामोश कातिल समझता हूँ, जो रस चूसकर फूलों को तबाह कर देता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि प्री फ्लावरिंग एक्शन यानी तनों पर स्प्रे करने की साइंसी वजह क्या है? देखें, सर्दियों में ये कीड़ा दरख्त की छाल और मोटी शाखों में छुप जाता है। अगर हम बोर आने से पहले ही तने पर स्प्रे कर दें तो हम इसे फूलों तक पहुंचने से पहले ही मार देते हैं। ये एक तरह की पेशगी कार्रवाई है। वाह, दुश्मन को उसके ठिकाने पर ही मार देना, जबरदस्त। अब मौसम की बात करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एंथ्रेसिनोस और पाउडरी मिल्ड्यू। ये दोनों फंगल बीमारियां हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की पहचान ये है कि फूलों और छोटे फलों पर एक सफेद और राख की तरह का पाउडर जाहिर होना शुरू हो जाता है। सफेद पाउडर? ये तो देखने में भी अजीब लगता होगा। जी, और ये एक इंतहाई संगीन खतरा है। ये फफूंदी की बीमारी इतनी जालिम है कि ये पैदावार में 80% तक कमी का बायस बन सकती है। 80%? ये तो तबाही है। बिल्कुल। और इस पर मौसमी असरात बहुत होते हैं, खासतौर पर जब फूल आए हों और बारिशें हो जाएं, तो इस बीमारी का खतरा इंतहाई बढ़ जाता है। तो फिर बचाव कैसे मुमकिन है? जैसे ही अलामात नजर आएं या मौसम खराब हो तो फौरन मखसूस फफूंदी कुश अद्वियात का हिफाजती स्प्रे करना चाहिए। इंतजार बिल्कुल नहीं करना। 80% नुकसान का हिंदसा तो किसी भी किसान के होश उड़ाने के लिए काफी है। और आपका मतलब है कि बारिश का पानी इस फंगस के लिए एक बेहतरीन माहौल पैदा करता है? जी हाँ, नमी फंगस को तेजी से फैलने में मदद देती है। अच्छा, अब इस मक्खी की बात करते हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट 1 फेरोमोन्स। फ्रूट फ्लाई वाकई एक बड़ा मसला है। आलमी मंडियों में फल की मक्खी के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जीरो टॉलरेंस मतलब एक भी मक्खी नहीं? बिल्कुल नहीं।
अगर एक मक्खी भी फल के अंदर अंडे दे दें तो वो पूरी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट को मुस्तरद करवा सकती है। इससे करोड़ों का माशी नुकसान होता है। ये मक्खी फल की बरामदी अहमियत को तबाह कर देती है। तो इसका हल क्या है? उसकी अफजाइश को रोकने के लिए अप्रैल के महीने में फंदे लगाए जाते हैं जिन्हें फेरोमोन ट्रैप्स कहते हैं। और उनमें क्या होता है? उनमें कीमियाई कशिश का इस्तेमाल किया जाता है। हम नर मक्खियों को पकड़ने के लिए मिथाइल यूजनॉल के ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं। सही। 1 एकड़ में कितने फंदे लगाने चाहिए? इसकी तनसीब का असूल ये है कि बेहतरीन कंट्रोल के लिए 1 एकड़ में बिल्कुल 4 से 8 फंदे लगाए जाएं, न कम न ज्यादा। ये तो कीड़ों के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का बायोकेमिकल जाल लग रहा है मुझे। बिल्कुल, और ये बहुत मौसर काम करता है। लेकिन सफाई का भी तो कोई किरदार होगा। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट 2 सैनिटेशन। कीमियाई अद्वियात के इस्तेमाल जितनी ही अहम है, इसके बगैर काम नहीं चलता। सफाई में क्या क्या शामिल है? इसका तरीका ये है कि जो गिरे हुए, गले सड़े और मुतासरा फल हैं, उन्हें बाग से मुसलसल इकट्ठा किया जाए। और इकट्ठा करके उन्हें बाहर फेंक दें? नहीं, सिर्फ बाहर नहीं फेंकना, उनकी तल्फी का खास तरीका है। जमा किए गए फलों को एक गड्ढा खोदकर जमीन में गहरा दबा देना चाहिए ताकि जो लार्वे हैं वो वहीं अंदर मर जाएं। अच्छा, जमीन में दबा दें? जी, और साथ ही बाइट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो पौधे के गैर फलदार हिस्से हैं उन पर मखसूस प्रोटीन बाइट का स्प्रे किया जाता है ताकि मक्खियां उस तरफ मुतवज्जे हों। मेरा एक सवाल है, ये गिरे हुए फल को जमीन में गहरा दबाना क्यों जरूरी है? ये तो काफी मेहनत का काम है। मेहनत है, लेकिन साइंस ये कहती है कि मक्खी का लाइफ साइकिल जमीन से जुड़ा है। मादा फल में अंडे देती है, फल गिरता है और लार्वे मिट्टी में चले जाते हैं। अगर हम गहरा दबाएंगे तो लार्वे मिट्टी के अंदर ही ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से खत्म हो जाएंगे। वाह, हम सीधा उनका लाइफ साइकिल तोड़ रहे हैं। अब पानी की बात करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है इरिगेशन मैनेजमेंट। आपाशी का इंतजाम बहुत क्रूशल है, खास तौर पर बोर के मरहले में। इस वक्त मुसलसल नमी जरूरी है। पानी की थोड़ी सी कमी भी फल बनने के अमल को रोक देती है। नमी बरकरार रखनी है। बिल्कुल, और इसमें एक छतरी का उसूल इस्तेमाल होता है जिसे कैनोपी रूल कहते हैं। उसके मुताबिक पानी पौधे की छतरी यानी उसके साए की हद तक पहुंचना चाहिए, उससे आगे नहीं। अच्छा, साए की हद तक। और तने का क्या होगा? तने की हिफाजत बहुत जरूरी है। आपाशी का पानी बराह रास्त दरख्त के तने को हरगिज नहीं छूना चाहिए। ठीक है। और अगर हमने जमीन में कुछ और मिलाया हो, जैसे जिप्सम? अगर जिप्सम डाला जाए तो ये उसूल है कि इसके फौरन बाद 2 से 3 मर्तबा भरपूर आपाशी करनी चाहिए, यानी दोहरी आपाशी। ये छतरी का असूल तो मुझे बहुत ही दिलचस्प तस्वर लगा। क्या दरख्त की जड़ें दरअसल उसके साए की हद तक ही फैली होती हैं? जी बिल्कुल। जो खुराक लेने वाली बारीक जड़ें हैं वो साए के किनारे पर होती हैं और तने को पानी से दूर इसलिए रखते हैं ताकि तने को फंगस ना लगे और वो गलने से बच जाए। बहुत खूब। पानी के बाद खाद की बारी है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देखें, मुतवाजन खाद ही दरअसल फल के वजन, मुनासिब साइज और अंदरूनी म्यार की जमानत है। कौन सी खाद सबसे बेहतर है? बेहतरीन जायके और रंगत के लिए हम दरख्त की उम्र के मुताबिक सल्फेट ऑफ पोटैश यानी SOP का इस्तेमाल करते हैं। और क्या कोई ऐसी खाद है जो नहीं डालनी चाहिए? जी, उसमें एक सख्त इंतबाह है। फल पकने के मराहिल में यूरिया या किसी भी किस्म की नाइट्रोजनी खाद का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अच्छा, यूरिया बिल्कुल नहीं? क्यों? क्योंकि पकते वक्त अगर नाइट्रोजन मिल जाए तो ये फल के अंदरूनी बिगाड़ का बायस बनती है, जिसे हम जेली सीड कहते हैं। यानी गुठली के साथ जो गूदा होता है वो गल जाता है और जेली बन जाता है। ओह, तो ये खादों का इस्तेमाल तो बिल्कुल इंसानी खुराक की तरह अहम है। मतलब किस वक्त क्या देना है। लेकिन ये जेली सीड वाली खराबी तो बज़ाहिर अच्छे फल को अंदर से तबाह कर देती होगी। जी बिल्कुल। आम बाहर से बहुत खूबसूरत लगेगा लेकिन अंदर से वो खाने के काबिल नहीं रहता। ठीक। अब कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो जाए। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये अज्जाए सगीरा यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे की कुव्वते मुदाफत बढ़ाने
और फल को गिरने से बचाने के पोशीदा महरकात हैं। ये बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन होते बहुत अहम हैं। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? सबसे पहले बोरेन। इसका इस्तेमाल फूल की साख्त को महफूज रखता है और कीड़ों के खिलाफ जो पौधे का दिफाई निज़ाम है उसके लिए बहुत अहम है। और जिंक भी इस्तेमाल होता है? जी हाँ, जिंक की फराहमी पत्तों को मुड़ने से रोकती है और फल की मुनासिब खुलियाती नश्व-नुमा यानी सेल्यूलर एक्सपेंशन को यकीनी बनाती है। उनको देने का तरीका क्या है? मिट्टी में मिलाते हैं? बेहतर ये है कि अज्जाए सुगीरा का बरवक्त फोलियर स्प्रे किया जाए, यानी पत्तों पर स्प्रे। ये कच्चे फल के गिरने के अमल को नुमाया हद तक कम करता है। मतलब हम इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पौधे के मल्टीविटामिन से तशबीह दे सकते हैं? 100%। ये पौधे के मल्टीविटामिन ही हैं जो इसे अंदर से मजबूत करते हैं। अब पौधे के ज़ाहिरी ढांचे पर आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी मैनेजमेंट में सबसे अहम स्ट्रक्चरल प्रूनिंग है। ये एक तरह की कटाई है जिसके जरिए हम सूखी लकड़ी और बीमारी से मुतासरा अंदरूनी शाखों को खत्म करते हैं। सही। सिर्फ सूखी शाखें या कुछ और भी? हम दरख्त को दरमियान से खोलते भी हैं। इस अमल से सूरज की अहम रोशनी दरख्त के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच पाती है। इस रोशनी का क्या फायदा होता है? रोशनी और हवा की बेहतर गुजरगाह से दरख्त के अंदर नमी कम हो जाती है। और आपको पता है कि नमी कम होने से फेफुंदी यानी फंगस पैदा करने वाला माहौल खुद ब खुद रुक जाता है। वाह! और फल पर भी कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल। जो मुनज़्ज़म छतरी वाले दरख्त हैं उन पर सूरज की रोशनी पड़ने से फल का रंग बहुत यकसा आता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन पर स्प्रे करना बहुत आसान हो जाता है। मेरा एक सवाल है, क्या दरख्त को अंदर से इस तरह काट कर खाली करना उसे कमजोर नहीं करता? बिल्कुल नहीं। दरअसल हवा का गुजर और सूरज की रोशनी फल की सेहत के लिए इतनी ज़रूरी है कि ये दरख्त को कमज़ोर करने के बजाय उसे मज़ीद सेहतमंद बनाती है। अंदर के पत्ते जो खुराक नहीं बना रहे होते वो दरख्त का बोझ बने होते हैं, उन्हें हटाना ही बेहतर है। अच्छा, ये तो बहुत लाजवाब टेक्निक है। अब फल बचाने की बात करते हैं। बहुत कुदरती केरा यानी थोड़ा फल गिरना तो आम बात है, लेकिन जब शदीद गर्मी पड़ती है और तेज हवाएं चलती हैं तो वो बड़े नुकसान का बाइस बनती है। तो इस मौसमी दबाव से फल गिरने को कैसे रोका जाए? इसके लिए हम मखसूस प्लांट हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा हार्मोन? हम नैफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी NAA का स्प्रे करते हैं। ये केमिकल फल और शाख के दरमियानी जोड़ को मजबूत कर देता है। और कोई एहतियात? एक शर्त ये है कि ज्यादा से ज्यादा फल बचाने के लिए NAA के स्प्रे के साथ साथ मिट्टी में नमी बरकरार रखना लाजमी है। खुश्क मिट्टी में ये काम नहीं करेगा। मैं तो इन हार्मोन्स के किरदार पर हैरान हूँ। मतलब एक स्प्रे और वो फल की डंडी को केमियावी तौर पर मजबूत करके दरख्त के साथ चिपका देता है। जी हाँ, ये बायोकेमिस्ट्री का कमाल है। मिट्टी की नमी का जिक्र आया है तो मिट्टी पर ही बात कर लेते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सॉइल हेल्थ एंड मल्चिंग। जमीन की सेहत बहुत अहम है। गर्मियों की शदीद धूप से बचाने के लिए हम दरख्तों के तनों पर बोर्डो पेस्ट लगाते हैं। ये एक खास लेप होता है। सही। और जमीन के लिए क्या करते? पौधे के साए में नामियाती मल्चिंग यानी ऑर्गेनिक मल्च बिछाई जाती है। उससे जड़ की नमी बरकरार रहती है और फालतू जड़ी बूटियां भी तलफ हो जाती हैं। उसके अलावा सब्ज खाद का भी जिक्र सुना है मैंने। जी, सब्ज खाद या ग्रीन मैन्यूरिंग ये जमीन की साख्त को नरम करती है, हवा का गुजर बेहतर बनाती है और मिट्टी में जो मुफीद जरसूमें हैं उनकी जिंदगी को बेहतर बनाती है। और क्या कोई ऐसी चीज है जो नहीं डालनी चाहिए? जी, एक बहुत बड़ी ममानियत है। गर्मी के मौसम में बाग में कच्चा गोबर या देसी खाद जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं वो हरगिज ना डालें। आम किसान तो कच्चे गोबर को अमृत समझता है। आप उसे क्यों मना कर रही हैं? देखिए, कच्चा गोबर जब जमीन में घुलता है तो वो गर्मियों में जमीन के अंदर का दर्जा हरारत और ज्यादा बढ़ा देता है और इतनी शदीद गर्मी में वो दरख्त की बारीक जड़ों को मुकम्मल तौर पर जला सकता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, अब फसल तैयार हो गई। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। कटाई के बाद की हैंडलिंग एक्सपोर्ट के लिए सबसे अहम है। सबसे पहले चॉप निकालना
जिसे डीसैपिंग कहते हैं। फल तोड़ने के फौरन बाद डंडी को धोया जाता है ताकि इसका रस छिलके पर लगकर उसे दागदार ना करे। और फिर वो गर्म पानी वाला अमल? जी, उसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहते हैं। ये अमल इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि ये फल की मक्खी के छुपे हुए अंडों और दीगर बैरूनी जरासीम का मुकम्मल खात्मा कर देता है। इसके बाद पैकिंग होती है? उससे पहले सख्त ग्रेडिंग होती है, जिसके जरिए हम फल को उसके वजन, रंगत और ज़ाहिरी खदोखाल के लिहाज से अलग अलग करते हैं। और फिर पैकिंग? जी, आखिर में हवादार और मजबूत यानी क्रश प्रूफ पैकिंग की जाती है, जो बैनुल अक़वामी मंडियों तक आम की महफूज तरसील को यकीनी बनाती है। ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट का तस्वर तो मुझे आलमी मार्केट में बरामद के लिए गेम चेंजर लगता है। ये वाकई गेम चेंजर है। इसके बगैर आजकल एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। और एक्सपोर्ट के कुछ और भी तो उसूल होंगे। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स ग्लोबल गैप। जी हाँ, आजकल ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन यूरोपीय और दीगर आला मंडियों के लिए एक लाजमी पासपोर्ट बन चुका है। इस सर्टिफिकेशन में क्या क्या देखा जाता है? इसमें ये देखा जाता है कि इस्तेमाल शुदा तमाम ज़रई अद्वियात की जो मुकर्ररा हद है, जिसे MRLs कहते हैं, उसकी सख्ती से पाबंदी की गई हो और दवाई का असर फल में बाकी ना हो। अच्छा, ट्रेसेबिलिटी का भी तो जिक्र होता है ना इसमें? बिल्कुल, तफसीली रिकॉर्ड और टैगिंग के जरिए बाग से लेकर मार्केट तक मुकम्मल ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाया जाता है कि आम किस बाग के किस दरख्त से आया है। और मजदूरों के हवाले से भी कुछ शराइत हैं? जी, मजदूरों के हकूक यानी एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का भी बाकायदगी से ऑडिट किया जाता है। ये बात मेरे लिए वाकई हैरान कुन है कि ज़राअत और आमों का ताल्लुक मजदूरों के हुकूक और ट्रेसेबिलिटी से भी जुड़ गया है। देखे ना, जदीद दौर का जो सारिफ है वो बहुत बाशूर है। वो सिर्फ जायका नहीं देखता, वो ये तसल्ली करना चाहता है कि वो जो बेहतरीन फल खा रहा है उसे इखलाकी तौर पर दुरुस्त तरीके से उगाया गया है। बहुत खूब। अब एक और संगीन बीमारी की तरफ आते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मैनेजिंग सडन डेथ, मैंगो डिक्लाइन। ये वाकई एक डरावना ख्वाब है किसान के लिए। अचानक सूखा या सडन डिक्लाइन ये जमीन में मौजूद पेचीदा फफूंदी यानी सॉइल बॉन्ड फंगस के बायस फैलने वाली एक बहुत तेज रफ्तार बीमारी है। दरख्त खड़ा खड़ा सूख जाता है। तो इसका फौरी इलाज क्या है? जरासीम के फैलाव को रोकने के लिए जड़ों में फौरी तौर पर सिस्टमेटिक फफूंदी कश अद्वियात का फ्लड किया जाता है, यानी ड्रेंचिंग की जाती है। और ये बीमारी लगती क्यों है? इसके बुनियादी मुहर्रिकात में ज़रूरत से ज़्यादा आबपाशी यानी ओवर वाटरिंग और पानी का बाग में खड़ा रहना शामिल है। यहाँ एक लफ्ज लिखा है करंटीना। ये क्या है? करंटीना का मतलब है कि मुतासरा पौधों को बाकियों से अलग कर दें, यानी बीमार पौधों का पानी किसी भी सूरत सेहतमंद पौधों की तरफ जाने से रोक दिया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसानों का करंटीना होता है, बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। बिल्कुल, पानी के जरिए बीमारी एक पौधे से दूसरे तक बहुत तेजी से सफर करती है, इसलिए रास्ता काटना पड़ता है। अब इस सारी साइंस को इकट्ठा कैसे किया जाए? अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM। IPM दरअसल एक मुतवाज़िन निज़ाम है। ये हयातियाती कंट्रोल, सकाफती तरीकों और कीमियाई अद्वियात के मुतवाज़िन इस्तेमाल का नाम है। हयातियाती कंट्रोल यानी कीड़े से कीड़े को मारना? जी हाँ, हमें कुदरती शिकारी कीड़ों जैसे लेडीबर्ड बीटल और मुफीद माइट्स की हर हाल में हिफाजत करनी है। और केमिकल का इस्तेमाल कब करना है? सख्त कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त करें जब कीड़ों का हमला माशी नुकसान की हद यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल्स को अबूर कर ले। जरा से कीड़े पर स्प्रे नहीं करना। मतलब एक मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम कायम करना है। जी, क्योंकि एक मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम ही साफ सुथरे फल और बाग की तवील मुद्दती बका को यकीनी बनाता है। तो मैं IPM को बाग की अपनी फौज कह सकता हूँ, जिसमें लेडी बर्ड बीटल जैसे कीड़े किसान के दोस्त का किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल सही समझे आप, और ये मुफ्त की फौज है। जबरदस्त। तो आखिर में अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है कंक्लूजन एंड एक्सपर्ट कॉन्टैक्ट। जी, तो सब सुनने वालों के लिए लाहे अमल ये है
کہ سال بھر جدید کاشتکاری کی رہنمائی کے لیے JQ گلوبل ایگریکلچر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور ہم سینئر سوئل سائنٹسٹ جناب محمد جاوید قمر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں جن کی رہنمائی میں یہ سب تیار ہوا۔ جی بالکل، مزید ڈیجیٹل معلومات کے لیے سب لوگ ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.jqglobal.official.com وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور واٹس ایپ سپورٹ کے لیے ہماری ٹیکنیکل ٹیم سے واٹس ایپ نمبر +92 349 984 1886 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو دیکھنے اور سننے والوں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ جدید سائنس کس طرح روایتی طریقوں کو بدل رہی ہے۔ ہم نے آم کی کاشت کے ہر مرحلے، بیماریوں، کیڑوں، پانی کے انتظام سے لے کر ایکسپورٹ کے عالمی معیارات تک بات کی۔ اور یہ سب معلومات کسان کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ بالکل۔ تو آپ سب کے لیے میرا ایک ختمی سوال ہے، کیا ہم آج کے دور میں ان روایتی طریقوں سے جڑے رہ کر گلوبل مارکیٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر کسان کو جزوی طور پر ہی صحیح لیکن ایک سائنسدان بننا پڑے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، مزید تحقیق کے لیے ویب سائٹ www.jqglobal.official.com اور واٹس ایپ نمبر +92 349 984 1886 پر رابطہ کریں۔ ہمارے ساتھ اس گہرے تجزیے میں شامل ہونے کا شکریہ۔